Hello students. In last lectures we have finished our isomerism part. Now today we are going to concentrate on metal carbonyls. Now let us see what are metal carbonyls. Metal carbonyls are actually homoleptic complexes. Homoleptic complexes. Homoleptic complexes. अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब दोज कॉम्प्लेक्सेस which has only one type of ligands. Only one type of ligands. Such complexes are called as homoleptic complexes. Some common examples are, suppose I write here FeCO5, pentacarbonyl iron 0. So this complex I can call it as homoleptic complex. It is because it has only one type of ligand, that is carbonyl. Suppose I write here this example C2O4 3 minus. So this complex also comes under the category of homoleptic complex because it is also having similar type of ligands. All ligands are of same type. This is trioxalato cobaltate 3 ion. So it is also homoleptic complex. In addition to this homoleptic complex, we are having another type of complex. Naturally it is heteroleptic complex. और heteroleptic complexes जो है आप उसकी डेफिनेशन बड़ी आसानी से बता सकते हैं बॉस. क्या बोल सकते हैं आप? सर जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स रहेंगे उनको हम बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं. सपोज आई टेक PT NH3 twice Cl2 diamine dichloroplatinum 2 complex. So this comes under the category of heteroleptic because it is having amine ligand and chlorido ligand. So दो अलग अलग टाइप के लिगेंड से करके हम इसको बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. लेकिन हमारा डिस्कशन तो बस मेटल कार्बोनिल्स का चल रहा है. सो मेटल कार्बोनिल्स की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है. These are the homoleptic complexes in which we are having carbonyl only as a ligand, and in majority of the cases the oxidation state of metal is 0. So these are called as metal carbonyls. सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं मेटल के साथ में अगर कार्बोनिल सिर्फ बॉन्ड बनाता है तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स. मेटल कार्बोनिल्स में इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल is 0. See what I am saying? I am saying majority of the cases. I am not saying all the cases. First example, if I take the example of NiCO4 tetracarbonyl nickel. अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो if I take this as X, carbonyl is neutral ligand, so X plus 0 is equal to 0, so overall charge will be 0. So यहाँ पे nickel is 0. Second, I can take FeCO5. Third, I can take CrCO6. I can take fourth also CO2, CO8. एक क्या नाम है बॉस इसका नाम देखो आप क्या है, octa carbonyl dicobalт 0. In the similar manner, last example if you take, you can take Mn2CO10. It is called as decacarbonyl dimanganese 0. सभी केसेस में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. So when I am saying in almost all cases oxidation number of metal is 0, I want to bring to your notice that in our NCERT book there is one question
what is the oxidation number? What is the oxidation number of कोबाल्ट इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स? देखो यहाँ पे क्या नाम है इसका भी, पोटेशियम टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट अपने को बोलना पड़ेगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो आपको पता चल जाएगा। अभी भी निकाल के देता हूँ आपको। सो यू कैन सी हियर पोटेशियम इज हियर 1 प्लस कोबाल्ट इज x प्लस all four 0 is equal to 0, so you will find x is equal to -1। तो यहाँ पे हमारे पास में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रहा है। दैट मीन्स वी कैन हैव निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक ही सिर्फ लाइन है एनसीईआरटी बुक में, लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट पेज पे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, और इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो इसीलिए अपने को ये बात याद रखनी पड़ेगी। सो इन मेटल कार्बोनिल्स इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0, whereas in this particular complex we can see oxidation number of cobalt is -1। Now let us see certain structures here। टेट्रा कार्बोनिल निकेल, हमने देखा इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था हाइब्रिडाइजेशन में। सो आई कैन राइट हियर निकेल 1 2 3 4। सो हियर 1 carbonyl, another carbonyl, third carbonyl and fourth carbonyl। this is tetrahedral structure। FeCO5 आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है। सो ज्योमेट्री विल बी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। सो आई कैन राइट हियर F1 2 3 4 and 5। so it is CO 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 trigonal bipyramidal geometry। Cr CO6 octahedral geometry। so I can write here Cr 1 2 3 4 5 and 6। so everywhere I am having carbonyl group attached to it, so it is CO CO and CO। now these two structures are important। out of these two, this is actually very important, CO2 CO8। now CO2 CO8 पे हमको क्या देखने को मिलता है? we can see that there is a covalent bond between these two cobalt। so I can write here covalent bond between these two cobalt। so cobalt is bonded with cobalt and there are now 8 CO। so I can write 8 CO as 1 2 3 4 5 6, this is 7 and this is 8। so I write here CO 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 CO। लेकिन हमको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे भी है CO, लेकिन हमको यहाँ पर एक बात याद रखनी है दोस्तों कि when we can see this cobalt is bonded with this carbonyl and this cobalt is bonded with this carbonyl। ये हमको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर को अगर फ्लैट तरीके से देखेंगे, आई एम ड्राइंग इट हियर, आई कैन राइट हियर 1 cobalt bonded with another cobalt। so here 1 2 3 4 5 6 7 and 8। see I am writing carbonyl 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने एक चीज नोटिस की, ये दो जो कार्बोनिल है दे आर ब्रिजिंग लिगेंड्स बिटवीन दिस टू कोबाल्ट, दे आर कोबाल्ट मेटल एंड दीज आर कार्बोनिल लिगेंड्स। तो ये हमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास में यहाँ पर दो कार्बोनिल ग्रुप ब्रिजिंग लिगेंड्स है। अनफॉर्चुनेटली दिस स्ट्रक्चर इज गिवन रॉन्ग इन एनसीईआरटी बुक एज वेल एज इन लास्ट ईयर्स state board book। the correct structure is this, where we are having two carbonyl as bridging ligand between these two cobalt। now the last structure which we can see here Mn2CO10, that also can be written in very convenient form। I am drawing this structure here for you people, let us check it out। इसका स्ट्रक्चर कैसे है? Mn2CO10, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। I can write here CO Mn 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So CO, 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 CO. तो यहाँ पे हमको ये आप देखेंगे ना कायदे से, तो दो ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री एक दूसरे के अंदर मर्ज भी ऐसे दिख रहा है हमको. सो दिस इज देयर. लेकिन एक बात याद रखनी है बस, सभी केस में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है. तो ये हमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर. तो ये स्ट्रक्चर भी याद रखेंगे, इसमें से ये स्ट्रक्चर हमारा इंपॉर्टेंट है. अभी हम नेक्स्ट पार्ट जाएंगे, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स में. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू फोकस on very important topic, that is bonding in metal carbonyls. Bonding in metal carbonyls थोड़ी अलग टाइप की बॉन्डिंग है, उसको हमको अच्छी तरह से डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही है. अगर आएंगे तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे unless and until we understand the entire concept. So ये कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से अपने को समझना पड़ेगा बॉस. ठीक है, सो लेट अस चेक इट आउट. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज आई टेक हियर FeCO5. What is the name? Pentacarbonyl iron 0. आपको मालूम है CO is strong ligand. तो जब मैं आयरन का हाइब्रिडाइजेशन देखता हूँ यहाँ पर Fe26, so my configuration becomes 3d6 4s2. Oxidation state is 0. Due to strong ligands, both these electrons will get paired up here. So our new configuration will become 3d8 4s0. Right? So I write here 3d8 4s0. So I write here d5 1 2 3 4 5 and here I write here 4s. अब मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, सभी की सभी पेयर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये d ऑर्बिटल वैकेंट है. सो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो इट विल बी व्हाट? ट्राइगोनल पाई पिरामिडल ज्योमेट्री. सो dsp3 ये हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है. अब आप यहाँ पे देखेंगे आयरन के साथ में एक d ऑर्बिटल खाली है. सो आयरन को मैं लिखता हूँ मेटल M and this d orbital I draw it like this. And I denote it as, क्या लिखता हूँ देखो मैं, empty d orbital of metal. ये मैंने नोटिस कर लिया यहाँ पर. अब इसके सामने मेरे पास में ये लिगेंड है, एक कार्बोनिल लेता हूँ. सो कार्बोनिल यू नो इट इज C ट्रिपल बॉन्ड O with one lone pair here, one lone pair here. बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखेंगे आप तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा. Now this carbonyl lone pair is responsible for giving the lone pair here in this vacant d orbital, forming a coordinate bond. But at the same time, this metal is having filled d orbitals. उसमें से एक filled d orbital ये वाला जो है मैं आपको यहाँ पे डिनोट करके बताता हूँ, क्योंकि बुक में जब आप देखेंगे तो आपको ऐसी ही डायग्राम देखने को मिलेगी जो मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आती क्या हो रहा है. लेकिन अभी देखेंगे अपन क्या है. सो दिस filled d orbital I am drawing. What is the shape of d orbital? Shape of d orbital is, you know, it is double dumbbell shape. तो ये डबल डम्बल शेप मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ. So I write here first dumbbell and here I write second dumbbell. ये all the four lobes denotes one d orbital. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इसको, देखो यहाँ पे एक lone pair of electron है, ये paired electron है यहाँ पे. So this is I write here filled d orbital. Filled d orbital of what? Metal. अब आपको क्या दिखता है? सपोज यू टेक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस लेंगे आप कार्बोनिल के लिए, तो आपको दिखेगा ये कार्बोनिल के पास में जो ऑर्बिटल खाली पड़े हैं दे आर पाई एंटी बॉन्डिंग, विच इज
they are what? Vacant. Vacant pi anti-bonding orbitals. कौन से? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो ये कार्बोनिल के कार्बन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स है. अब आप इमेजिन कीजिए कि ये लोन पेयर यहां पे आ गई, तो बॉन्ड तो बन गया भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो देयर इज वन बॉन्ड कार्बन टू मेटल, CM bond, and at the same time when this carbon forms a bond with this metal, they come closer. So here this lobe which is vacant of carbonyl and filled lobe of metal, they overlap. So when they are overlapping, we can see that this pi electron can go here, it can go here. So this bond is naturally having which character beta? Sigma character, whereas this bond is having which character? Pi character. So MC bond has pi character, whereas CM bond has sigma character. So दोनों character यहाँ पे है. This is called as back bonding. So ये special type की bonding है. So this bonding is called as synergic bonding. This bonding is called as synergic bonding. अब ये synergic bonding से क्या होता है कि आपको देखने को मिलता है कि this metal and this carbonyl they are forming bond, और अगर ये यहाँ पे overlap हो गया तो आप देखेंगे कि it is becoming tight. If it is becoming tight, this bond length will increase. So CO bond length will increase because of synergic bonding. CO bond length increases slightly. जो नॉर्मल रहती है, देखो 3 बॉन्ड से पहले से छोटी है वो, लेकिन इसमें मेटल कार्बन इसमें वो थोड़ी सी बड़ी होती है. अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो बीट सेट के अपने को बुक पे देखने को मिलेगा. लेट अस फोकस ऑन दिस एग्जांपल. नाउ बेटा दिस इज द क्वेश्चन. लेट अस चेक आउट दिस क्वेश्चन. द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO सिंगल बॉन्ड इज इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1.128 एंगस्ट्रॉम यूनिट. The CO bond length in FeCO5 is, अब CO bond length FeCO5 का एग्जांपल लिया था अभी अपन ने. अब देखो मेटल कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण ये बॉन्ड लेंथ हल्की सी बढ़ जाती है. अब ये 1.128 है, इससे अगर हल्की सी बढ़ जाएगी तो 1.128 तो रहेगी नहीं, उतनी तो रहेगी नहीं. 1.72 बड़ी हुई है इससे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी हुई है. ये तो कम है, ये भी नहीं है, और ये हल्की सी बड़ी हुई है. 1.2 है, it is 1.5. So our correct option will be what? Option D. So this is the importance of this synergic bonding. In synergic bonding, this bond length increases, whereas MC bond length decreases. More the number of lone pairs with the metal ion, more the number of lone pairs or paired electrons with the metal, greater is the bond length of this. Okay, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. I will discuss 2 more questions with you right now. Okay, thank you. Now students, let us see these 2 important questions. First question is from JEE 2007, and same kind of question with twisted format has been asked in CPMT in 2011. Let us check out this question first. 2007 JEE. Which of these has lowest CO bond order? CO bond order, CO का बॉन्ड ऑर्डर किसमें कम है? ऑप्शन यही है, दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन यही है. ये 4 ऑप्शंस है इसके अंदर. अब आपको MOT में मालूम है क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ बॉन्ड लेंथ, है ना? बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी रहेगी उतना बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा. अब बॉन्ड लेंथ बढ़ कब सकती है? जब पाई बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग रहेगी. पाई बॉन्डिंग स्ट्रांग कब रहेगी? जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें 4 ऑप्शन में किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? इस क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे ये कैटायनिक लिगेंड है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, सॉरी ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स अनायनिक है. इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मतलब दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मूविंग टुवर्ड्स कार्बोनिल. फॉर दिस
vanadium, it is negative here. So vanadium ki electron will be going more here. Naturally this bond will be stretched, and suppose this bond will be stretched, longer the bond length, shorter will be its bond order. Longer the bond length, shorter will be its bond order. So lowest bond order के लिए हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. समझ में आ गया क्या? फिर से एक बार बता रहा हूं, क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इसकी जितनी बढ़ेगी उतना बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ कब बढ़ सकती है बेटा? ये जब ये एम और सी बॉन्ड क्लोज हो जाएंगे. एम और सी बॉन्ड कब क्लोज होते हैं? जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं. तो वैनेडियम में, वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इट विल बी गोइंग हियर, बॉन्ड विल बी स्ट्रेच्ड एंड बॉन्ड ऑर्डर विल बी लोअर इन दिस पर्टिकुलर केस. इसका काउंटर पार्ट 2011 में देखते हैं. Which of the following has strongest CO bond? Strongest CO bond मतलब क्या पूछा है हमको? यही क्वेश्चन है. अब किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है पूछा है. किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है मतलब क्या? जितने इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे उतनी टाइट रहेंगे. तो आपको किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? कटायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर. सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए क्या है? ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मैंगनीज इज लेस हियर. Here electron density is more. So these are two beautiful questions. Same kind of question you can expect in KVPY. Same kind of question you can expect in BITSAT. So metal carbonyls में synergic bonding in metal carbonyl यही सबसे important topic है. Students, ये topic fortunately या unfortunately हमारे नए साल के नए बुक में नहीं है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है. I hope you understood metal carbonyls.